No, ma'am. Good morning, one and all. Today is 21st January 2022, and we'll be taking practical number 16, C programming, union and structure difference. So let's see what is the difference between union and structure. हमने क्या किया, उसका डिफरेंस करने के लिए दो चीजें डिक्लेयर की. एक स्टूडेंट वन डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर which consists of name one, course one and age one. Then we have declared union. Okay, so struct student one. So we have created one structure called as student one, which comprises of three members: name one, course one, age one. ये character array 20 bytes. Next is character array 20 bytes. Integer 4 bytes. So S1 is a structure of type student1. So what will be the size of this structure? इस structure का कितना size होगा? चलो कोई बताओ फटाफट. Unmute yourself and tell me what will be the size of this structure. 24. S1. 24 कैसे होगा? Structure है. Structure will be the sum of the number of the bytes occupied by individual members. Sum of the number of the bytes occupied by individual members. This occupies 20 bytes. Course occupies 20 bytes and integer occupies 4 bytes. So total size of S1 will be 44. 44. 44. Next is very good. Union. Union is second union जो हमने second create किया, that is union. Student 2 को हमने कैसा create किया? Union. Student 2 also comprises of name 2, course 2 and age 2. So इसमें 20 bytes character name array, character array 20 bytes, course array 20 bytes, then age 2 integer 4 bytes. Now union occupies the maximum size of the data member. Data member का जो maximum size है, that will be the size of the union. So यहाँ कितना bytes है? This occupies 20. 20 bytes. Very good. This is 20 bytes and this is 4 bytes. तो यहाँ maximum कितना हुआ? 20 bytes. So S2 का कितना size आएगा? Size of the S2 union will be 20 bytes. Whereas size of S1 will be how much? कितना बताया था? S1 का size 44. 44. ठीक है, यहाँ पर इसका size हो गया 44 bytes. And here the size of the union will be 20 bytes. Okay, whatever I am teaching, only those questions appears in the exam. वो questions exam में आएंगे आपके. Now printf size of structure. So what will be the output of this statement? Size of is the operator which gives the size of the structure. So size of the structure S1. So what will be the output? कितना आएगा size of structure? अभी आपने बताया. How much will be the size of the structure? 44. 44 bytes. 44 bytes. Very good. Then what will be the size of S2, which is union? Size of union is %d. So S2 is union. 20. 20 bytes. तो अब समझ में आया what is the basic difference between union and a structure? The difference between Yes, union ma'am. and a structure is that the structure occupies the sum of the number of the bytes occupied by the all the members of the structure, whereas union occupies the maximum size of maximum number of the bytes occupied by the data member. जो data member का maximum number of bytes है वो उसका size होगा. This is the basic difference between union and structure. Now next thing which we see is गाड़ी दे दे, तू बड़ी खेलना है तो वो खेल रहा है ना. mute. Vaishnavi. Next thing is enter name, course and age of the structure. हमने scanf किया name को, course को scanf किया since it is %s. So s1 dot name 1, s1 dot course 1 and m% s1 dot age 1.
तीनों को स्कैन किया, ठीक है। सिमिलरली यूनियन में भी हमने तीनों को स्कैन किया, s2.name2, s2.course2 and s2.age2. Now you are trying, now I am trying to print student1, which is a structure s1.name1, s1.course1 and s1.age1. Similarly, I am trying to print union s2.name, s2.course and s2.age. अब ये जो हमने यूजर से रीड किया है स्ट्रक्चर, ये तीनों यूजर से रीड किए, यूनियन में भी तीनों रीड किया और स्ट्रक्चर में ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, जो रीड किया वो प्रिंट हो जाएगा, बट यूनियन में जो हमने रीड किया वो प्रिंट नहीं होगा। अब रीजन बिहाइंड दिस इज दैट all these three variables which are the member of the union shares common memory space. मतलब ये तीनों ने एक ही सीट के ऊपर बैठे हैं, तीनों, ये 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ये 20 बाइट्स और ये 4 बाइट्स। तो हमने पहले क्या किया, पहले इस 20 बाइट्स के अंदर scanf के टाइम पे हमने कुछ डेटा डाला, ये स्टेटमेंट से scanf से name2 के अंदर कुछ डेटा डाला। उसके बाद में जो डेटा हमने कोर्स के लिए डाला है, सेकेंड वन इज s2.course, पहले हमने नेम में डेटा डाला, ठीक है, उसके बाद में हमने कोर्स 2 में डेटा डाला। तो जो नेम में डेटा डाला है वो ओवरराइट होकर कोर्स 2 आ गया, क्योंकि हमारे पास सीट एक ही है और ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही सीट को ऑक्यूपाई करते हैं, एक ही स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अगर आप एक बात करते हो कि हमारे पास में एक चेयर रखी हुई है और ये 3 आदमी लोग हैं, 3 पर्सन है, नेम टू कोर्स एंड एज। तो पहले क्या हुआ, जब मैंने इसमें स्कैनएफ करके नेम2 को रीड किया, जब मैंने स्कैनएफ करके नेम2 को रीड किया तो उसके अंदर नेम2 का डेटा स्टोर हो गया। बट फिर से स्कैनएफ करके जब कोर्स 2 की डेटा रीड किया तो जो पहला वाला डेटा है वो रिमूव होकर नया डेटा कोर्स 2 का आ गया, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज स्पेस एक ही है। उसी एक स्पेस में हम पहले नेम एंटर किया, फिर वो ओवरराइट हो गया, फिर कोर्स 2 आ गया, फिर वो ओवरराइट हो गया, फिर एज 2 आ गया। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी यहाँ पे तो नेम2 में कुछ भी नहीं आएगा, गार्बेज डेटा आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ डेटा है ही नहीं। कोर्स 2 में भी कोई डेटा नहीं प्रिंट होगा, एज में डेटा प्रिंट होगा क्योंकि ये लास्ट डेटा जो है वो अपडेट हुआ है। जबकि स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर के केस में ये तीनों 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट होंगे और तीनों के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व की हुई है। नेम 1 20 बाइट्स सेपरेट स्पेस है, एक चेयर इसके लिए, एक चेयर इसके लिए, एक चेयर इसके लिए, 3 चेयर 3 वेरिएबल्स के लिए है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर। whereas in case of union all these 3 share a single memory space, और यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग मेमोरी स्पेस दी गई है। तो जब ये तीनों एक ही मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला डेटा है वही अपडेटेड, वही उसके अंदर डेटा रहेगा वेरिएबल के अंदर, बाकी के अंदर डेटा रहेगा ही नहीं क्योंकि वो ओवरराइट हो जाएगा। So now let's execute. Program is executed. Now let's run the program. Now you can see the result. ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। Size of structure is 44 bytes. Size of union is 20 bytes. ओके, तो यूनियन जो है वो मैक्सिमम जो साइज है डेटा मेंबर का वो नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, whereas structure occupies the sum of the number of the variables data members in the structure. सम करेगा उनका, सारे डेटा मेंबर्स जितने भी है उनका प्लस करके डिस्प्ले करेगा। नाउ एंटर नेम, कोर्स एंड एज ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो नेम एंटर करने के टाइम पे I'll enter the name. This is structure के अंदर हम name enter किया student1, then I'll enter the course BCA, then the age 34. Now union, next is union, so enter name, course and age of union student2 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ name enter किया Priya BSc and let's say enter age. Okay, now structure student1 details, name 1 Suhashni, course BCA, age 34, union student2 details, name, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे स्पेशल कैरेक्टर आ गया, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ। course 2 is equal to the garbage value.
Now age 2 equal to 19. This is the last value which is stored in this variable 19. लास्ट वैल्यू विल बी 19 और ये दोनों वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो गई है। प्रिया जो है वो बीएससी से ओवरराइट हो गई, बीएससी की जो वैल्यू है वो 19 से राइट होगी, तो 19 जो लास्ट वैल्यू है वही दिखाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। नाउ टेल मी, समझ में आया? So pointers are the variables which points to the address location of another variable. Pointers क्या है? Pointers are the variables which points to the address location of another variable. ये मेरा माउस पॉइंटर है, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अभी माउस पॉइंटर कहाँ चला गया? Now it is pointing towards which variable? Now it is pointing towards P. ये कर्सर है, ये कीबोर्ड का पोजीशन दिखा रहा है और ये माउस है, ये माउस पॉइंटर का पोजीशन दिखा रहा है। देखो कर्सर यहाँ पर है, माउस पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो पॉइंटर इज वन विच पॉइंट्स टू द एड्रेस लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि अगर आपका एक घर है, हाउस है, उस हाउस के अंदर आई जस्ट शो यू कि एक घर है, घर के अंदर हाउस है। दिस इज योर, से फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने एक now this is a pointer another variable, ये ptr is a pointer, ptr is a pointer. This pointer is pointing towards the address location of another variable. ये pointer कहाँ point कर रहा है? This pointer is pointing towards the address location of another variable. ये इसको point कर रहा है. So this is house in which person is residing. This is the name of the house and this is the address of the house. ये मेरा घर है, इस घर के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरे घर का नाम है, ये मेरे घर का एड्रेस है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, दिस इज अ वेरिएबल, नेम इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द डेटा SUHA and this name variable is stored at memory address location 2000H. H stands for hexadecimal value. Okay. अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करती हूँ तो ये नेम जो है ये वेरिएबल है, इस नेम वेरिएबल के अंदर ये डेटा स्टोर है और नेम वेरिएबल मेमोरी के अंदर इस एड्रेस के ऊपर स्टोर है। नेम के अंदर ये डेटा है, नेम जो है वेरिएबल का नाम है, उसका एड्रेस लोकेशन 2000H है। सो वेरिएबल data in the variable, address location of the variable. Address location is the location which is the address at in the memory where the variable resides. इस एड्रेस लोकेशन के अंदर ये वेरिएबल रिसाइड करता है, इस वेरिएबल के अंदर ये डेटा रिसाइड करता है। वेरिएबल के अंदर डेटा होता है। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आर द मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा. So name is a variable which stores the data and this is the address location where the name variable resides. Okay, now what is a pointer? Pointer is another variable. Pointer भी एक variable है, पर ये कैसा variable है? Pointer is a variable which points to the address location of another variable. दूसरा variable name है तो उसके address location को ये point कर रहा है। जब ये उसके address location को ये point कर रहा है PTR, so PTR is a variable which points to the address location of another variable. दूसरे वेरिएबल के एड्रेस लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। सो PTR इज अ पॉइंटर व्हिच पॉइंट्स टू द एड्रेस लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। PTR जो है नेम जो वेरिएबल दूसरा है उसके एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। सो पॉइंटर डज नॉट स्टोर एनी वैल्यू एक्सेप्ट द एड्रेस लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस लोकेशन। क्या स्टोर करता है? पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। And what the variable stores? Variable stores the data and variable where the variable resides, कहाँ रहता है वेरिएबल? मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पर रहता है, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये मेरा घर है, इस घर में मैं हूँ, ये घर का नाम है,
that is the name of the variable and this is the address of the house. इस घर का एड्रेस लोकेशन ये है, इस घर का नाम ये है. तो जब भी हम घर को ढूंढेंगे तो या तो हम एड्रेस से घर को ढूंढ सकते हैं या फिर उसके नाम से हम घर को ढूंढ सकते हैं. तो अगर आप एक कॉलोनी में हो तो उस कॉलोनी के नाम से, उसका जो नाम रहेगा उससे हम उसको ढूंढ सकते हैं या उसके एड्रेस से हम उसको ढूंढ सकते हैं. सो दिस कंटेंट कैन बी invoked, can be accessed using either name or using the address location. जो ये कंटेंट है ये या तो उसके नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं या एड्रेस लोकेशन. अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट इज द वैल्यू एट द एड्रेस लोकेशन 2000h, देन इट इज SUHA. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम, देन यू से SUHA. If I say what is the value where the pointer PTR is pointing, so PTR pointer is pointing towards 2000h location. So what will be the value where the pointer is pointing? Pointer is pointing at the address location 2000h. So pointer के अंदर क्या value है 2000h. But अगर मेरा question ये है कि what will be the content where the pointer is pointing? What will be the content of the variable where the pointer is pointing? जहाँ pointer point कर रहा है उस address location के ऊपर जो content store है वो क्या है, तो SUHA. अगर हम बोलेंगे कि पॉइंटर के अंदर क्या है, पॉइंटर का कंटेंट्स क्या है, पॉइंटर का कंटेंट्स 2000h है, बट पॉइंटर जिस एड्रेस लोकेशन के ऊपर पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट क्या है, तो SUH. समझ में आया? तो दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड आइदर नेम वेरिएबल और इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द एड्रेस लोकेशन और इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पॉइंटर. सो व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर इज अ मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल. अब इसमें स्पेशल बात ये है कि जो नेम वेरिएबल का डेटा टाइप रहेगा वही डेटा टाइप PTR का भी होना चाहिए. दैट मीन्स अ पॉइंटर शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. जिस लोकेशन के ऊपर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन के वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप पॉइंटर का भी होगा. ओके, सो पॉइंटर अगर नेम कैरेक्टर एरे स्टोर कर रहा है तो ये कैरेक्टर एरे नेम वेरिएबल का डेटा टाइप हुआ. सो पॉइंटर का भी डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर एरे रहेगा. अगर इसके अंदर हमारा इंटीजर डेटा स्टोर है, ये इंटीजर वेरिएबल है, तो पॉइंटर विल ऑलवेज बी ऑफ टाइप इंटीजर. तो जो वेरिएबल का डेटा टाइप रहेगा वही पॉइंटर का डेटा टाइप रहेगा. ओके